सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं, बेस्ड है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एपीओ इंटरव्यू। और आपको बताना चाहेंगे, हमारे एक व्यूअर ने हमसे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट की कि सर एपीओ रिगार्डिंग आप एक इंटरव्यू दे दीजिए। दोस्तों वैसे तो हमने लीगल प्रोसेसेस रिगार्डिंग, लॉयर रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको अपने चैनल्स पर वीडियोस दे रखे हैं। अगर आपको भी कोई इंटरव्यू ऐसा लगता है जो आपको देना है, विच यू फील एज इफ इट इज नॉट अवेलेबल एट पीडी क्लासेस चैनल, यू कैन डेफिनेटली राइट अस ऑन कमेंट बॉक्स, विल डेफिनेटली मेक यू दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू। और हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप अबंडेंट वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के देख सकते हैं और बहुत कुछ वहां से सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कविता, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सर। कविता, ये एक मॉक सेशन है और सबसे पहले आई वांट टू नो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल क्या होता है, और उसके बाद मैं आपसे इससे रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस पुट अप करूंगा। सर असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के काफ़ी सारे वर्क होते हैं। ओके सर इन्वेस्टिगेट एंड प्रिपेयर लीगल केस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इन क्रिमिनल मैटर्स, राइट, एंड सर टू रिप्रेजेंट द स्टेट इन कोर्ट, ओके and prepare evidence and arguments individual accused of, यस, and sir to provide legal advice to various government department and law enforcement agencies, ओके and draft legal documents including charge sheet, briefs and appeals, ओके liaising with police and other investigate agencies to gather evidence, यस, and sir stay updated with changes in law and other legal practice, and sir participating in legal practice ओके इन and वेरियस लीगल रिसर्च आल्सो। yes sir, ओके and sir maintain records and documents all actions यस, and decision related to case handled, ओके and sir assist prosecution officer in various legal case, राइट, and sir arresting without warrant Yes. or arresting with warrant, or questioning third parties. ओके। रिसेंटली व्हाट हैव यू स्टडीड, आपने पर्टिकुलर इन दिनों में जो जो सब्जेक्ट्स पढ़े उनके बारे में मुझे बता दीजिए, मैं उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पुट अप करूंगा। Sir, I have studied Indian Penal Code ओके and Limitation Act, Evidence Act, Contract Act or Specific Relief Act, ओके and sir Partnership Act, राइट, Negotiable Instrument Act, ओके Muslim law, Yes. Hindu law, company law, and tort and administration law. okay okay administrative। which section of CRPC says criminal court is held for the purpose of inquiring into or trying any offense shall be deemed to be open court? Sir, Section 327. Yes, Kavita, the code of criminal procedure in India was enacted in which year? Sir, 1973. okay, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? Yes, sir. Sir, the Code of Criminal Procedure is divided into 37 chapters okay with 484 section, Yes. 2 schedule, and 56 form. okay okay you tell me, who can appoint public prosecutor in CRPC? Sir, state government or central government. Yes, yes, yes. The right to fire legal aid is mentioned under which section of CRPC? Sir, Section 304. Okay. Under the provision of criminal procedure code 1973, cognizable offense means? Sir, police officer may arrest without warrant. Okay. Dismissal of the complaint under CRPC belongs to which section? Sir, Section 203. Okay. What is section 202? Sir, this section deals with the postponement of the issue of the process. Okay. What is the maximum amount of police custody that can be provided under section 1672 of CRPC? Sir, 15 days. Yes, yes. Okay, now you tell me, the power of summon persons is provided under which section of CRPC? Sir, Section 175. Okay. What is zero FIR? क्या होता है ये? Sir, zero FIR is mode of logging FIR in any police station Okay. regarding to particular that area or any other area of jurisdictions. Okay, it's a mode of logging FIR in any police station, irrespective of the committed in that area or any other jurisdiction. Yes, sir. अच्छा, in which case the concept of zero FIR is recognized in CRPC? Sir, state of Andhra Pradesh, V. Punati Ramulu. Okay.
And under section 176 of CRPC, in the case of alleged rape, the inquiry shall be held by? सर आइदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ओके अच्छा, अब आप ये बताइए कि आप एपीओ क्यों बनना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? व्हाट मोटिवेट्स यू टू बिकम एपीओ? यस सर, सर माय फादर इज एडवोकेट। ओके। और सर मैं बचपन से डिफरेंट केस के बारे में मेरे फादर से सुनती हुई आ रही हूँ, जिससे मेरा इंटरेस्ट है वो लॉ के अंदर डेवलप हुआ। उसके बाद मैंने लॉ के अंदर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। सर बैचलर डिग्री ऑफ लॉ कंप्लीट करने के बाद मैं कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए आ रही हूँ। और सर मैं अक्सर अपने फादर के साथ कोर्ट भी जाती रही हूँ। सर बार काउंसिल में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के बाद और लगभग 4 साल प्रैक्टिस करने के बाद सर मेरा इंटरेस्ट है वो एपीओ के अंदर बढ़ा। और लकीली सर आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू रिस्पेक्टेड पर्सन। ओके अच्छा, ये बताइए सेक्शन 224 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 डील्स विथ? सर विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्ज ऑन कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड ऑफ सेवरल चार्ज। Oh, one of the several charges. Yes, sir. Okay. Now you tell me, fraudulent removal or concealment of property, etc., to prevent distribution among creditors is dealt under this section? सर सेक्शन 421 ऑफ आईपीसी। Yes. Assisting concealment or disposal of stolen property, knowing it to be stolen, is dealt under section? सर सेक्शन 414 ऑफ आईपीसी। Yes. You tell me, presumption of culpable mental state is a part of? सर सेक्शन 10C ऑफ आईपीसी। Yes. Marrying again during the lifetime of a husband or wife is dealt under? सर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी। Okay. Criminal intimation is dealt under section? सर सेक्शन 506। Okay. Kidnapping for ransom, etc., is dealt under which section of IPC? सॉरी सर आई डोंट नो। It's section 364A of IPC. थैंक यू सर। Okay. Examples of proactive policing is, what are the examples? सर हॉटस्पॉट पॉलिसिंग Yes. एंड स्टॉप एंड रिसर्च पॉलिसिंग Yes. एंड इंटेलिजेंस लीड पॉलिसिंग। Okay. आपकी स्ट्रेंथ बताइए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके अंदर। सर एज फार एज माई स्ट्रेंथ आर कंसर्न आई एम फिलांथ्रोपिस्ट, क्विक लर्नर, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। वेरी गुड। और आपकी कुछ और क्वालिटीज बताइए। सर आई एम वर्सेटाइल गर्ल एंड आई कैन एडजस्ट माई सेल्फ इन एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन। ओके। सर आई एम कॉम्पिटिटिव एंड चैलेंजिंग गर्ल। गुड। And sir, I'm kind of team spirit person, and I don't like to hog all the credits. Oh, you are a team spirit. Yes, sir. You like to give everybody the credits. Yes, sir. And sir, I'm a jovial person, and I don't like anybody to remain sad in my company. Oh, पर संचित व्यक्ति है, अपने माहौल में आप किसी को दुखी नहीं देख सकते। Yes, sir. Okay, so these qualities you are having. Any weakness? कोई weakness है आपके अंदर? Sir, I want every work in perfect manner. Okay. And sometimes because of this, my personal work hampers. Okay, that's great. Kavita, we have lot many candidates for APO. Why should we recruit only you? कोई रीजन दीजिए हमें। सर मैं उनके बारे में तो नहीं बता सकती, पर सर मैं खुद का बता सकती हूँ। मेरे पास एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 4 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। Okay. और मेरी जो डिग्री है जो मैंने लॉ के अंदर की थी, उसके अंदर मेरी ग्रेडिंग भी काफ़ी अच्छी है। Okay. और सर मैंने अपने फादर के साथ काफ़ी सारे केस है वो प्रैक्टिस किए हैं, तो उधर का नॉलेज है जो यहाँ पे काफ़ी काम आएगा। Right. आपकी हॉबीज़ क्या है? सर माई हॉबीज आर लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग नॉवेल्स एंड मीटिंग न्यू पर्सनैलिटीज, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। ओके, वैसे तो आपने अच्छा आंसर दिया है, पर अब मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स को भी हेल्प करते हैं। दोस्तों, अगर आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो लास्ट में आपको एक टिप देते हो, टिप आपके बहुत काम आता है। देखिए, ड्यूरिंग एन एपीओ इंटरव्यू दे वुड आस्क यू हम आपको क्यों सिलेक्ट करें। अब ये क्वेश्चन वो 2 तरीके से पूछेंगे, या तो वो आपको बोलेंगे व्हाई शुड वी रिक्रूट यू, या फिर वो इस तरीके से पूछेंगे जो मैंने कविता से पूछा, दैट वी हैव लॉट मेनी कैंडिडेट्स, व्हाई शुड वी रिक्रूट ओनली यू। यदि वो आपके सिंपल तरीके से पूछते हैं कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, तो बिल्कुल आप ऑर्डिनरी आंसर देंगे। आप कहेंगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हर कोई ये बात नहीं बोलता, मैक्सिमम लोग अपनी प्रशंसा करने में लग जाते हैं। सर मैं डिटरमिन्ड हूँ, डेडिकेटेड हूँ, मेरे अंदर ये चीज़ है, कॉन्फिडेंस है। पर मेरी राय रहेगी कि आपकी स्टार्टिंग ऐसा ही होना चाहिए कि सर यदि आप मुझे सेलेक्ट करते हैं, सर इफ़ यू सेलेक्ट मी यू आर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल माई ड्रीम्स। आप ये लाइन भी स्टार्टिंग में कह सकते हैं। उसके बाद नो डाउट आप अपने बारे में सब कुछ अच्छा बताएंगे, जैसे कविता ने अपना एक्सपीरियंस बताया, मार्किंग्स बताई, ग्रेडिंग्स बताई, आप भी सब कुछ बताएंगे। ये सब आप हाईलाइट कीजिए
और आप ये भी कह सकते हैं सर आई विल जस्टिफाई योर सिलेक्शन विद माय सिंसियर एफर्ट्स, और लास्ट में आप एक पंचलाइन दे सकते हैं सर आई रियली नीड वन चांस टू शो माय स्ट्रेंथ्स। और यही क्वेश्चन यदि कंपैरिजन के रूप में पूछा जाए, जैसे मैंने कविता से पूछा, तो बिल्कुल आप स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे, सर ऑल्दो एट प्रेजेंट आई कांट जज अदर्स हु आर स्टैंडिंग इन अ क्यू लाइक मी, येट आई कैन एश्योर यू अबाउट माई सेल्फ। सर यद्यपि इस समय मैं अपने आप को उनसे तो कंपेयर नहीं कर सकता जो मेरी तरह कतार में खड़े हैं या क्यू में खड़े हैं, पर मैं अपने बारे में बता सकता हूं कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, पंक्चुअल हूं, ऑनेस्ट हूं, क्रिएटिव हूं, डिटरमिन्ड हूं, डेडिकेटेड हूं, हार्ड वर्किंग, एंथुसियास्टिक, पंक्चुअल। आप जो भी स्ट्रेंथ्स बताते हैं वो स्ट्रेंथ्स हाईलाइट कीजिए, उसको प्रूव करने की ताकत रखिए, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यूअर आपको बोल देते हैं प्रूव योर स्ट्रेंथ्स, यानी कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स भी बतानी चाहिए, अपनी वीकनेस भी बतानी चाहिए, और अपनी स्ट्रेंथ्स को प्रूव करने के लिए अपना एक पास्ट का एग्जांपल भी आपके पास हर समय तैयार रहना चाहिए। नो डाउट दोनों क्वेश्चंस में से इंटरव्यूअर कभी भी दोनों क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछते हैं, या तो वो फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे या सेकंड, मींस वो आइदर और चलता है। तो आपके पास बहुत अच्छी बात रहती है अपने बारे में बताने के लिए, अपनी अचीवमेंट्स गैदर कीजिए, आपकी क्या क्या काबिलियत है, आपके क्या क्या अचीवमेंट्स है अभी तक, वो सब गैदर कीजिए, और डेफिनेटली आप अच्छा रिस्पॉन्स लेंगे। इट इज़ माई श्योरिटी टू यू, और मेरी बेस्ट विशेस स्टूडेंट्स, कीप इट अप। और कविता आपने भी बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, और जो ये आईपीसी की जो धाराएं वगैरह है ये आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है इसके बारे में, थैंक यू, दैट इज रियली ग्रेट। थैंक यू सर। ओके।